Hello students, welcome to unit number 13, amines, lecture number 13. As we know that in this COVID situation, in your 2020-2021 board paper, the portions from this diazonium salt is not included in your curriculum. But in future, because there is no declarations from NTA, means National Test Agency, as well as GUJSET body, that this portion is included or not. So that's why we are very much interested to study all these portions regarding to the NTA purpose as well as GUJSET purpose, because it's the most important topic about the physical properties of amines. So now we move to the physical properties of diazonium salts. So arene diazonium salts, arene diazonium salts are generally colorless, crystalline solids, and they are highly soluble in water. Highly soluble in water. Right? Number 2, many diazonium salt, not all, but many diazonium salts, especially nitrates, are dangerously explosive in the dry state. Therefore, they are never isolated but usually prepared in situation and used immediately after their preparations. Okay. Another salt is diazonium salts such as fluoroborates are relatively insoluble in water, and stable in nature, right? That's why we have stored this fluoroborate salts. So यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो भी हमारे पास एरिन डायजोनियम सॉल्ट्स है, मेनली तो हम यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की ही बात कर रहे हैं. दे आर जनरली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, and due to these ionic characteristics of this diazonium chloride salt, they are highly soluble in water. Many diazonium salts, especially nitrates, are dangerously explosive in the dry state. तो उसकी वजह से क्या होगा? Therefore, they never isolated, but usually prepared in situation. यहाँ पे हम उसको प्रोसेस में आगे बढ़ते हम बनाते उसकी प्रोसेस भी कर देते हैं. So which is used immediately after their preparations. But however, certain diazonium salts such as fluoroborates are relatively insoluble in water and are stable enough to be dried and stored. Okay, so this is all about the physical properties of amines. Now the chemical properties of this diazonium salt. We know that these all diazonium chlorides, right, or arene diazonium salts are highly reactive. All are highly reactive compound. और उसकी जो हाईली रिएक्टिविटी है, जो दिस देयर हाई विच इज ड्यू टू व्हाट? सो देयर हाई रिएक्टिविटी ड्यू टू excellent living ability, right, of the diazo groups as
N2 गैस, यानी वो जो डायजो ग्रुप है वो नाइट्रोजन गैस से वो निकल जाएगा. सो they having a very good ability to this excellent ability. Okay, so they are therefore extremely useful synthetic reagents in the organic chemistry. And we in this chemical reactions of diazonium salts, which are broadly divided into two categories. हम यहाँ पे दो कैटेगरी में उसको डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है reactions involving, right, reactions involving displacement of diazo group by monovalent atoms और ग्रुप्स भी हम बोल सकते हैं उसको. यानी हमें क्या करना है, वो डायजो ग्रुप निकाल देना है और मोनोवेलेंट को यहाँ पे ले आना है. और दूसरा जो यहाँ पे उसको हम बोल रहे हैं कि ब्रॉडली दूसरी जो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन, यानी हमें निकालना नहीं है, रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप. यानी डायजो ग्रुप हम निकालेंगे नहीं, वहीं पे रहेगा, रिटेंशन हो जाएगा. तो ये दोनों है. तो हम यहां से अभी जो हमारा ए पोर्शन है, तो हम यहाँ पे अपना ए पोर्शन यहाँ पे शुरू करते हैं. ए पोर्शन क्या है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप बाय मोनोवेलेंट एटम्स और ग्रुप्स. समझ में आ रहा है? तो उसमें जो पहला वाला है, फिर से मैं यहाँ पे आपको जो ए पोर्शन है उसको मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूं. रिएक्शंस involving displacement of nitrogen, यानी हम नाइट्रोजन को निकाल के उसके ऊपर प्रोसेस हम करना चाहेंगे. तो यहां पे हम देखेंगे फर्स्ट वन है हमेरा, वो है रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन. रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन. ये हमने पढ़ा हुआ है. सेंड मेयर रिएक्शंस की हमने बात बिल्कुल हमें मालूम है. तो उसमें क्या होता है, देखिए मैं डायरेक्ट आपको रिएक्शंस पे ले जा रहा हूं. मेरे पास यहां पे है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, और ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड NCl माइनस प्लस, फिर से मैं यहाँ पे मैं उसको शॉर्ट में BDC ही लिखूंगा, आपको समझ जाना चाहिए. बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की बात हो रही है. और यहाँ पे उसके 3 सेक्शंस में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं. एक है CuCl HCl है, दूसरा मेरा जो है यहाँ पे है वो है CuBr HBr, और तीसरा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं वो है CuCN KCN. क्लियर? तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी पढ़ाया हुआ था कि इसमें यहाँ से N2 निकल जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्लोरोबेंजीन और नाइट्रो हो जाएगा. तो मुझे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मिलेगा. सेम वे इस तरह से ही मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ से N2 निकल जाएगा और ब्रोमोबेंजीन मुझे यहाँ पे मिल सकता है. ब्रोमोबेंजीन मुझे यहाँ पे मिल सकता है. उसी तरह से जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे साइनोबेंजीन और N2 हो जाएगा, या हम साइनोबेंजीन या उसको हम बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं. तो मैंने अभी आपको जो दिखाया तो उसमें क्या हुआ था कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन which is can be easily introduced into the benzene ring, उसको ट्रीट बाय ट्रीटिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड. यहाँ पे मैंने दिखाया था वो जो कोल्ड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ BDC विथ अ सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड which is dissolved in hydrochloric acid and cuprous bromide dissolved in HBr respectively. Same way or similarly, this cyanide is also can be introduced by treating this BDC with a cuprous cyanide dissolved in aqueous KCN. So this process is using cuprous salt. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्यूप्रस सॉल्ट का यूज हो रहा है. जहां पे भी क्यूप्रस सॉल्ट का यूज हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सैंड मियर रिएक्शन. सैंड मियर रिएक्शन.
ये हमने हेलो अल्केन में बिल्कुल पढ़ा हुआ था, तो इसको हम सेंड मेयर में ले जाएंगे। तो ये जो मेरा पोर्शंस मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे मैंने क्यूप्रस सॉल्ट का यूज किया हुआ है और मुझे ये सेंड मेयर रिएक्शंस में ले गए हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया आपको? फाइन, ओके। यहाँ पे कई बच्चे को ऐसा क्वेश्चन होता है, तो ये है ना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चले जा रहे हैं। ये इसका जो मैकेनिज्म है ना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे हेलोजन है विच इज अटैच्ड टू कॉपर विच एंटर्स द बेंजीन रिंग। समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा भी एक प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक ऐसा दिखने वाला ही एक प्रोसेस यहाँ पे मैं फिर से दिखाना चाहता हूं आपको। देखिए, यहाँ पे है मेरे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसको हम बीडीसी ही बोलेंगे। और ये बीडीसी का जैसे मैंने रिएक्शंस आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है वो है कॉपर HCl। फिर मैं इस तरह से मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कॉपर HBr, और तीसरा मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कॉपर KCN, राइट। तो कॉपर HCl से मुझे क्या मिलेगा? तो कॉपर HCl से मुझे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मिलेगा और N2 निकल जाएगा। सेम वे मुझे यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, N2 निकल जाएगा। उसी तरह से मैं यहाँ पे साइनाइड दिखाऊंगा और N2 निकल जाएगा। तो ऑल्टरनेटिवली दिस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड साइनाइड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेंजीन रिंग बाय सिंपली ट्रीटिंग diazonium salts with a hydrochloric acid, hydrobromic acid and potassium cyanide respectively in presence of copper powder। यहाँ इंस्टेड ऑफ Cu+1 सॉल्ट से मैंने क्या लिया है? सिर्फ यहाँ पे मैंने कॉपर पाउडर का ही यूज किया हुआ है। और जो ये रिएक्शंस आप देख रहे हैं, तो वो रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? गाटरमैन रिएक्शन, राइट। इट्स अ कॉल्ड एज गाटरमैन रिएक्शंस। ये गेटरमैन रिएक्शंस है ना वो कुछ भी नहीं है, हमें पता है कि जो ये है ना इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेंड मेयर रिएक्शंस, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हाउएवर यील्ड्स इन सेंड मेयर रिएक्शंस आर फाउंड टू बी बेटर। क्योंकि यहाँ पे जो हमें यील्ड मिलेगी ना, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 80% हमें यहाँ पे यील्ड मिल रही है, यहाँ पे बिल्कुल हमें इसकी हाफ यानी 40% यील्ड यहाँ पे मुझे मिल रही है। सो इट्स बेटर कि आपको प्रोडक्शन के लिए जाना हो तो यू हैव टू यूज अ सेंड मेयर रिएक्शन। बट दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट by the means of Gaterman reactions where we convert this BDC into respective their group। तो ये जो पहला मैंने आपको हेलाइड्स की बात की थी, अभी जो दूसरा है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। अभी मैं आयोडाइड आयन की यहाँ पे मैं आपको बात करना चाहता हूँ, यानी मुझे जो भी है यहाँ पे मैं आयोडीन लेके आऊंगा। तो वो भी हमने पढ़ा हुआ था पहले, आयोडीन वाली बात हमने सोच रखी थी कि दिस रिप्लेसमेंट ऑफ द डायजो ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर्ड क्यूप्रस हैलाइड और कॉपर एज अ कैटालिस्ट। यहाँ पे कॉपर की कोई जरूरत नहीं है, इट इज सिंपली अचीव्ड बाय ट्रीटिंग एंड डायजोनियम सॉल्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे हमें सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड ही यूज करना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं N ट्रिपल बॉन्ड NCl प्लस माइनस, शॉर्ट फॉर्म में मैं BDC लिख रहा हूं। When it reacts with a simple potassium iodide, so we get a product is iodobenzene प्लस यहां से निकल जाएगा KCl और N2 निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखिए आपको मालूम होगा कि बेंजीन में से आयोडोबेंजीन डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका एक इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आपको आयोडोबेंजीन बनाना हो तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, इसके लिए आपको एनिलीन में आना पड़ेगा, इसके लिए आपको नाइट्रोबेंजीन में आना पड़ेगा, फिर बेंजीन। यानी हम बेंजीन में से पहले नाइट्रोबेंजीन, बाद में एनिलीन, देन BDC एंड देन प्रोसीड्स टुवर्ड्स टू द आयोडोबेंजीन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयोडोबेंजीन हम यहाँ से, तो इट्स अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस BDC। तो आपको BDC का भी पता चलेगा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं वो है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोरीन, या हम उसको फ्लोराइड आयन भी बोलेंगे। इसका एक और नाम है, उसको हम बोलेंगे बाल्स-शिमेन रिएक्शन। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बाल्स-शिमेन रिएक्शन।
ओके तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा कहानी में मुझे थोड़ा एक घुमाव यहाँ पे मैं ले आ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से ही मैंने अपनी शुरुआत की है, यहाँ पे बीडीसी है मैंने शुरुआत की थी। लेकिन व्हेन एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, मैंने उसको फ्लोरोबोरिक एसिड से मैंने प्रोसेस कराई है, राइट। सो डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट गेट प्रेसिपिटेट्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो कि मुझे जब भी पहले प्रेसिपिटेट्स मिले वो है N2 प्लस एंड BF4 माइनस, और HCl यहां से निकल गया। तो ये जो मुझे यहाँ पे मिला है उसको हम क्या बोलेंगे, डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, राइट। अभी हम उसको थोड़ा हीट में, यानी इसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसे इसको हीट में डालेंगे तो वो मुझे फ्लोरोबेंजीन में चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एराइल फ्लोराइड, या हम उसको फ्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, प्लस N2 तो निकल जाएगा, प्लस BF3 निकल जाएगा। तो इस तरह से हम फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो मैंने अभी आपको क्लोरोबेंजीन भी दिखाया, ब्रोमोबेंजीन भी दिखाया, आयोडोबेंजीन भी दिखाया, फ्लोरोबेंजीन भी दिखाया, यानी पूरा जो फैमिली, और एक्स्ट्रा मैंने बेंजोनाइट्राइल की भी बात की थी। लेकिन इट्स अ यूनिक मेथड टू फॉर्म अ फ्लोरोबेंजीन, बिकॉज बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन डायरेक्ट नहीं निकल सकता है। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट बेंजीन, तो आपको बेंजीन में से नाइट्रो में चला जाना पड़ेगा, फिर एनिलीन में आना पड़ेगा, फिर BDC में आना पड़ेगा, फिर उसको डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट में ले जाके मुझे ये फ्लोरीन की जो प्रोसेस है उसको मुझे यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अभी जो नेक्स्ट है वो है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अभी हम जो भी रिप्लेसमेंट करेंगे तो वो हाइड्रोजन से हम रिप्लेसमेंट करना चाहेंगे। अभी आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन का एक और यहाँ पे उसको हम बोल सकते हैं, उसको हम डीएमिनेशन भी बोलते हैं, डीएमिनेशन भी कई बार उसको बोला जा रहा है। सो द रिप्लेसमेंट ऑफ द डायज़ो ग्रुप बाय हाइड्रोजन, और हम कई बार इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, और द रिडक्शंस ऑफ द डायज़ोनियम सॉल्ट्स, राइट, व्हिच कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग अ डिफरेंट टाइप। जैसे मैंने हाइपोफॉस्फोरस एसिड यूज करूंगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। देखिए N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, हमें मालूम है ये BDC है, और ये BDC का रिएक्शंस मैंने किसके साथ करवाया है, H3PO2। H3PO2 का मतलब है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, राइट। तो उसका मैंने कॉपर +1 सॉल्ट की प्रेजेंस मैंने जैसे मैंने लिया, तो वो कहाँ चला गया, यहाँ से N2 निकल गया, वो बेंजीन में चला गया, उसने एक हाइड्रोजन HCl से निकाल दिया और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दिया है। समझ में आ रहा है? सो बेंजीन मिल गया है मुझे, HX भी मिल गया है, और N2 मेरा यहाँ पे निकल गया है। HX यानी HCl, हम इसको HCl ही बोलेंगे, राइट। तो ये इस तरह से मुझे यहाँ पे बेंजीन मिल रहा है। तो वो जो मेरा जो H3PO2 था, तो उसका वो कन्वर्जन किस में हो गया है, H3PO3 में चला गया है। और ये रिएक्शंस इस तरह से भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का एक और कॉन्सेप्ट भी है, जैसे मैं यहाँ पे इथेनॉल की प्रेजेंस में भी उसको ले जा सकता हूं, तो भी मुझे यहाँ पे बेंजीन ही मिलेगा, लेकिन ये इसका ऑक्सीडेशन होके वो एसीटाल्डिहाइड में चला जाएगा, और मुझे मालूम है यहाँ पे N2 और HCl तो निकल जाएगा, तो उससे बेंजीन यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। इसमें से आप 2 H निकाल दीजिए, यानी CH3CHO में तो पहला H HCl को निकालेगा, ये निकलेगा तो N2 निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, तो बेंजीन हो गया है। तो आपको देखिए ये बिल्कुल उल्टा हो गया ना, हम बेंजीन में से BDC बनाते थे वाया नाइट्रोबेंजीन एनिलीन से, यहाँ BDC से बेंजीन यहाँ पे हम हो रहे हैं। तो देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बार फिर से आपके साथ बात करना चाहता हूँ, द रिप्लेसमेंट of the diazo group by hydrogen or the reduction of diazonium salts, right, to arene compounds, their hydrocarbon compounds can be carried out by using hypophosphorus acid or phosphenic acid at room temperature, preferably in presence of copper-1 salt as a catalyst. तो इसी वजह से कर सकते हैं। The reactions can also be carried out by treating amines with sodium nitrate and hypophosphorus acid as a diazotizing agent. And another portion is alternatively this diazo group may be replaced by hydrogen by heating arene diazonium salts with ethanol.
So this wall process involving the diazotization of an amide followed by the reductions of diazonium salts or replacement of the diazo group by hydrogen is called as an deamination. तो उसको इस तरह से हम deaminations में भी उसको समझा सकते हैं. तो ये एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो deaminations वाला था वो भी मैंने आपको समझाया है. फिर मैं पांचवें कॉन्सेप्ट में चला जाता हूं. पांचवा कॉन्सेप्ट है वो है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप. रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी मुझे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे ले आना है. ये तो बिल्कुल इजी है क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो सिंपल है. जैसे मेरे पास मैंने आपको पहले भी बोला था एक बार कि जैसे मेरे पास यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, आपको मालूम होगा एनिलीन लिया था, HCl था, NaNO2 था, राइट. तो ये जो है उसमें वो पानी तो था ही, HOH तो था ही, और उसको नियर अबाउट 278 केल्विन से, जैसे मैंने आपको 0 to 5 से थोड़ा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, यहाँ से N2 निकल जाएगा और ये यहाँ पे मुझे फिनोल मिल जाएगा. तो ये मुझे फिनोल मिला हुआ है, N2 है, HCl है. तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ से जो मेरे पास BDC था उसमें से मैं फिनोल निकाल सकता हूँ. समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी है, उसमें कुछ भी करना नहीं है आपको. सिक्स्थ वाला मुझे यहाँ पे दिखाया गया है वो है रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप. यानी मेरे पास जो नाइट्रो ग्रुप है उससे मुझे रिप्लेसमेंट करना है. तो मैं नाइट्रो ग्रुप से कैसे रिप्लेसमेंट उसको कर सकता हूं ये आपको दिखाना पड़ेगा. मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. फिर से मुझे BDC था मेरा N ट्रिपल बॉन्ड NCl, मैं फिर से यहां पे चला जा रहा हूं BDC में. So nitro compounds are generally prepared by treating and this एरिन डायजोनियम जो क्लोराइड कंपाउंड का मुझे फ्लोरोबोरेट में डालना पड़ेगा. तो पहले मैं यहाँ से HbF4 के साथ, मैंने आपको बोला था अभी कि उसको हम फ्लोरोबोरिक एसिड बोलेंगे. तो फ्लोरोबोरिक एसिड से वो वहां पे चला जाएगा. ये N ट्रिपल बॉन्ड N तो है, ये प्लस है. तो जो फ्लोरीन में हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे BF4 माइनस आ जाएगा. समझ में आ गया? हम इसको क्या बोलेंगे, हम एरिन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट. यानी हम उसको यहाँ पे इस तरह से भी दिखा सकते हैं. बेंजीन है, डायजोनियम है और ये फ्लोरोबोरेट में चला गया है, फ्लोरोबोरेट. और जैसे फ्लोरोबोरेट है तो उसको हम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइड, जैसे मैंने सोडियम नाइट्राइड का जो एक्वियस सॉल्यूशन था और कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में मैंने जैसे उसका रिएक्शंस करवाया है तो वो वहां पे चला गया है नाइट्रोबेंजीन में. तो देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो विथ दिस BDC और यहाँ पे N2 निकल गया है और NaBF4 इस तरह से निकल जा रहा है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोबेंजीन हम किस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हैं. तो ये जो मैंने 6 अभी आपके पास रिप्लेसमेंट की बात की थी वो 6 आपको इसमें देयर इज अ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन. यहाँ पे सभी जगह पे नाइट्रोजन निकल गया है. अभी और बात मैं नेक्स्ट 2 में करना चाहता हूं कि B पोर्शन था मेरा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप, यानी मुझे रखना है. So here the reactions which is involving the retention of the diazo group, यानी हमें N2 निकालना नहीं है. उसमें 2 प्रोसेस है लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में एक ही प्रोसेस यहाँ पे दी गई है और जो प्रोसेस हमें यहाँ पे दी गई है वो है कपलिंग रिएक्शंस. हम उसको कपलिंग रिएक्शंस भी बोल रहे हैं. तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शंस में क्या होगा कि जो मेरा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या हम उसको बोल सकते हैं एरिन डायजोनियम जो हमारे पास सॉल्ट्स है विच इज रिएक्ट विथ हाईली एक्टिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच, राइट. हम उसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड्स.
जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, सच एज फिनॉल है मेरे पास, या मेरे पास एनिलीन है। तो हमें मालूम है ये फिनॉल में ऑक्सीजन के पास और एनिलीन में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होने की वजह से, तो वो यहाँ से उसके साथ रिएक्शंस करके वो क्या बनाएंगे, सो टू फॉर्म अ ब्राइटली कलर्ड एजो कंपाउंड्स। तो यहां पे मुझे एजो कंपाउंड्स मिलेंगे, ब्राइटली कलर्ड एजो कंपाउंड मिलेंगे। ये आपको समझ में होना चाहिए कि ये ब्राइटली कलर्ड कंपाउंड क्यों मिल रहे हैं। इसकी एक प्रोसीजर है, क्योंकि द कलर ऑफ दिस एजो कंपाउंड क्यों हो रहा है, तो विच इज ड्यू टू द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा इन्वॉल्विंग द डबल बॉन्ड ऑफ द बोथ एरिंग रिंग्स और थ्रू एन डबल मोड एन डबल बॉन्ड। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे बीडीसी का ए एन ट्रिपल बॉन्ड एन सीएल, मुझे ये दिखाना ये निकालना नहीं है, यानी मुझे टेम्परेचर 0 to 5 ही रखना पड़ेगा। और उसका जो रिएक्शन है वो मैं फिनॉल के साथ करवाना चाहता हूं। किसके साथ करवाना चाहता हूं? फिनॉल। मुझे मालूम है फिनॉल एसिडिक होने की वजह से ये मैं यहाँ पे बेसिक मीडिया में उसका रिएक्शंस पीएच नियर अबाउट 9 to 10 के आसपास में मैं यहाँ पे रिएक्शंस करवा के नियर अबाउट इतने ही टेम्परेचर पे तो उसका कपलिंग हो जाएगा। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा और मुझे जो यहाँ पे कंपाउंड मिल रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, N डबल बॉन्ड N और ये कंपाउंड समझ में आ गया। यहाँ पे OH है और HCl यहाँ से निकल गया है। फाइन, तो ये जो कंपाउंड मुझे यहाँ पे मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ये पेरा पे हाइड्रोक्सी है। देखिए पेरा हाइड्रोक्सी, फिर एजोबेंजीन है, तो पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मुझे मिल रहा है, वो ऑरेंज कलर का मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कैसा मुझे मिल रहा है? ऑरेंज। तो मेरे पास जो यहाँ पे बीडीसी था, तो बीडीसी का मैंने जो रिएक्शंस करवाया है वो फिनॉल के साथ मैंने रिएक्शंस करवाया है, तो वो पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन में चला गया है और वो ऑरेंज कलर में आ गया है। तो उसी तरह से जैसे मैं एक और कंपाउंड आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए ये भी फिर से बीडीसी लिया हुआ है और मैं यहाँ पे आपको एनिलीन की बात समझा रहा हूं। ये क्या है? एनिलीन है। हमें मालूम है कि एनिलीन बेसिक होने की वजह से मुझे यहाँ पे एसिडिक मीडिया लेना पड़ेगा, यानी मुझे पीएच है नियर अबाउट 4 to 5 पीएच से सेम टेम्परेचर 273 थ्रू, क्योंकि मुझे N2 निकालना नहीं है। समझ में आ गया? तो मुझे फर्स्ट इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज भी होगा, लेकिन मैं आपको फाइनल ही प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये NH2 में चला जाएगा, क्योंकि उसमें पहले इंटरमीडिएट डायजोएमिनोबेंजीन मिलता है, लेकिन मैंने आपको फिर से यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये जो है मुझे पेरा एमिनो एजोबेंजीन, पेरा एमिनो एजोबेंजीन, और जो इसका जो कलर है वो क्या है? येलो कलर में चला गया है। मैंने अभी आपको बोला कि ये कलर क्यों होता है, तो कलर ऑफ दिस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये कॉन्जुगेशन, देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरा कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग द डबल बॉन्ड ऑफ बोथ द एरिन रिंग्स थ्रू दिस एन डबल बॉन्ड है। तो उसकी वजह से ये उसका ट्रांजिशंस होने की वजह से मुझे यहाँ पे कलर मिल रहे हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड थे जैसे फिनॉल है, एनिलीन है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल उसके जो प्रोसेस करके उसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से वो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शंस यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है। ऐसे तो मैं कहीं एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे बीडीसी की बजाय मैं यहाँ पे सल्फानिलिक एसिड भी कर सकता हूँ। तो सल्फानिलिक एसिड की जो प्रोसेस है मिथाइल ऑरेंज, आपने नाम तो सुना ही होगा, मिथाइल ऑरेंज विच इज यूज एज ए इंडिकेटर, तो वो भी इसी तरकीब से या उसी मेथड से हम यहाँ पे हम उसको दिखा सकते हैं। तो ये जो था वो मेरे बी पोर्शंस मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। जो इंपॉर्टेंस है हमेरा, अभी आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ द डायजोनियम सॉल्ट्स क्या है, क्यों हमने ये जो पूरा पोर्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बोला कि जो डायजोनियम सॉल्ट है ना वो बेस्ट, मैं इसको इस तरह से भी दिखा सकता हूं कि दे आर वेरी गुड इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इंटरमीडिएट्स, राइट।
क्योंकि मुझे फ्लोरीन लाना हो या क्लोरीन लाना हो या ब्रोमीन लाना हो या आयोडीन लाना हो या साइनाइड लाना हो या OH लाना हो या नाइट्रो लाना हो, जो भी मेरे रिप्लेसमेंट मुझे यहाँ पे करना है तो मैं कुछ इस तरह से एरोमेटिक रिंग में ले आ सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे वी नो दैट द एराइल फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड, जैसे में फ्लोराइड है और आयोडाइड है, वो दोनों कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशंस, राइट, यानी बेंजीन का डायरेक्ट हेलोजिनेशंस में नहीं कर पा रहा हूं, बट कैन इजीली प्रिपेयर्ड बाया डायazonium सॉल्ट्स। सेम वे मैं आपको यहाँ पे एक और दिखाना चाहता हूँ, जैसे साइनो, तो ही बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर जी क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन निकाल के साइनो डाल दो। नहीं, क्लोरीन में से क्लोरीन निकालना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो इस तरह से हम निकाल नहीं सकते हैं। सो in the case of cyano groups cannot be introduced by nucleophilic substitutions reactions of chlorine in chlorobenzene, but benzonitrile can easily prepared from the diazonium salts। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। hydroxyl group cannot be introduced directly into the benzene ring, यानी OH में हम डायरेक्ट नहीं ला सकते, तो इसका भी यहीं से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो इसके लिए डायazonium salts की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। सो द रिप्लेसमेंट ऑफ डायazो ग्रुप बाय a number of other monovalent groups gives a useful method for preparing those substituted aromatic compounds which otherwise cannot be prepared either by the direct substitutions in benzene or the substituted benzene। तो ये जो इसकी जो इंपॉर्टेंस है, तो वो मैंने आपका जो पूरा डायazonium salts की बात यहाँ पे मैंने आपको समझाई है, वो तो इसकी इस तरह से यहाँ पे जो लेसन है वो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक और बात भी एनटीए के लिए यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा ये जो डायazonium salts में से किस तरह से कन्वर्जन्स निकाले जा रहे हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बात करूंगा। कहीं बच्चे को ऐसा होगा कि सर जी ये सिलेबस में है ही नहीं तो हम क्यों करें, नहीं, इसका बहुत सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है। आप एक बार देख लीजिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, हाँ सिर्फ आप बोर्ड की एग्जाम देना चाहते हैं तो ये पोर्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप डोंट वरी अबाउट इट, राइट। लेकिन सेंट मेयर तो आगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन में तो रखा हुआ है, तो आपको यहाँ से तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के भी मैं आपको थोड़ा अच्छे कन्वर्जन्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी इंटरेस्टेड है वो बच्चे को मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर्स है, मेरा जो लेक्चर नंबर 14 है, तो उसमें मैं अच्छी तरह से कन्वर्जन्स की भी बात यहाँ पे मैं करूंगा। थैंक यू वेरी मच।